Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum students. How are you, Naima, Ramesa? Hope so you all would be best. Welcome to tutric.com, which is the free study platform for the students of O-levels, Matric, FSC and A-levels. Right, I am Beta Misbah Ashraf and I am taking O-levels for the students who are going to appear in this 2022 exams. Right, we have completed crash course in which we have completed or revised our whole syllabus, and now we are practicing past papers. Right, as we have paper 6 on 10th of May, so we have planned to practice paper 2 and paper 6, paper 2 which is on 11th of May, and then as we will be having sufficient time between paper 2 and paper 1, तो उसमें हम बेटा पेपर 1 सॉल्व करेंगे. राइट, और ये जो हमने बेटा पास्ट पेपर सेशन स्टार्ट किया हुआ है, ये हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 21 से बैकवर्ड जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं. राइट, आज जो है हमने ये पेपर सॉल्व करना है. दिस इज 5090 विंटर 21 क्वेश्चन पेपर 2 ठीक है, सेकेंड वेरिएंट का, पाकिस्तान के वेरिएंट का बेटा ये पेपर है. ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स जो है वो हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे. ठीक है, लेट्स solve this question number 1. Hope so the screen is shared. If my voice is audible and the screen is shared with you, you can let me know through a text message in the chat box. Right, let's read out this question number 1. The diagram shows a photomicrograph of the lower surface of the leaf. Right, name each of the parts labeled A to C. इसमें बेटा हम देखते हैं कि what are these parts. अच्छा, इसमें बेटा ये जो है सेंटर दिस वन, ठीक है, these B are the guard cells. These are two bean shaped guard cells which are making a hole in the center. Can you see here? जो बेटा C है, this is labeled here on the hole, so this is stoma और stomata. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो बेटा A है, these are the surrounding cells around the stomata or around the guard cells, so these are the epidermal cells. Right, so now let's see what the examiner is asking. Name each of the parts labeled A to C. ठीक है, इसमें बेटा हम दोबारा लेबल कर लेते हैं. What is A? A is basically the epidermal cell. This is the epidermal cell. Right, and what is B? B are the bean shape. These are the guard cells. Right, these are guard cells. And C जो है बेटा, this is the pore. ये देखें यहाँ पर they have also labeled pore. You can take help from this pore. बेटा these are the stomata. This is the stomata. Right, okay. Next हम इसका B part देखते हैं. In an area affected by air pollution, the surface of the leaf becomes covered with the particles. Area which is affected by the air pollution, the surface of the leaf becomes covered with the particles, dust particles, कोई भी particles, and these particles reduces the amount of the light entering the leaf and may block all the pores of the type labeled C. अच्छा, it means beta these particles, dust particles or pollutants are blocking the stomata, right? And if stomata is being reduced or the leaf surface is being covered by the pollutants, less light is being trapped into the cell or into the mesophyll cells, right? और अगर pores भी block हो गए हैं तो इसका मतलब है कि less carbon dioxide is also being diffused into the cells. ठीक है, less carbon dioxide जा रही है, less sunlight जा रही है. So how it will affect? Explain how this will affect the production of the starch by the plants. ठीक है, it's very simple. ये इसको बेटा हम किस तरह करेंगे, आप इसमें देखें कि there is no sunlight या less sunlight. ठीक है, तो less sunlight में क्या होगा,
ठीक है, एज द पोर्स आर बीइंग क्लोज्ड, हम इसको देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें बेटा आप देखिए कि लेस सनलाइट, ठीक है, इट विल बी द limiting factor for photosynthesis, right? अच्छा, सेकेंड जो है बेटा, as the pores are also being blocked, so less carbon dioxide is being diffusing, right, is being diffused. So less carbon dioxide means again there will be less photosynthesis, because sunlight and carbon dioxide are the limiting factors during photosynthesis. If there will be less photosynthesis, so what will happen? Less photosynthesis means less or no photosynthesis, right? Less photosynthesis means less glucose is being synthesized. Less glucose, right? And less glucose, right? Less glucose means that there will be less or no starch present, because glucose is converted into starch. So these are the reasons how the photosynthesis will be affected by the pollutants which are covering the leaf surface and which are covering the pores or stomata, right? Isme beta less sunlight will be trapped, because of which there will be the less photosynthesis. One point, the carbon dioxide will be less, which will cause less photosynthesis. Again, carbon dioxide and sunlight will be the limiting factors, right? If there will be less photosynthesis, then there will be less glucose synthesized during photosynthesis, right? If less glucose is being synthesized, then there will be less or no starch. So in this way, starch production is actually affected by the pollutants which are covering the leaf surface, right? This is for 4 marks. तो इसमें बेटा हमारे यहाँ पर जो है 4 marks complete हो जाते हैं, right? So let's move to the next part. Okay बेटा, now let's move to its second part, B part. इसमें हम देखते हैं a species of the caterpillar, the holy looper feeds on the leaves of the holy plant. This is the plant, ठीक है? अच्छा, species जो है बेटा, this is the, let's use different colors, right? And this is the caterpillar. Holy looper is the caterpillar, right? And this is feeding on the holy plant. 2 हो गया हमारे पास. अच्छा, holy plant जो है बेटा, this produces red berries. They are producing the fruits that are eaten by a species of the birds. This is eaten by birds and the song thrush. Okay, song thrushes also eat caterpillars and are eaten by the hawks. Okay, they are eaten by the birds, right? And the birds, then they are eaten up by the song bird. Okay, bird is basically song thrush. Name of the bird is the song thrush. You can write down the names or you can write down the specific term. Birds are basically, they are the song thrush. Then this song thrush also eat. They are eating these berries and they are also eating, और क्या खा रहे हैं बेटा? They are also eating the caterpillars, right?
and then are also and are eaten up by, then these birds are eaten up by the hawk, right? So here we have to actually draw the food chain. इसमें food, ठीक है, दोबारा बेटा मैं इसको रीड कर देती हूँ. Species of the caterpillar. Caterpillar is the holy looper. It feeds on the leaves of the holy plant. तो holy plant क्या है? यहाँ पर बेटा हमारे पास एक producer है. This is the producer. This is eaten up by the caterpillar. ठीक है, कैटरपिलर आप लिख लें या आप इसमें स्पेसिफिकली नाम लिख दें, होली लूपर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, होली प्लांट प्रोड्यूसेस, दीज प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग द रेड बेरीज. तो यहाँ पर बेटा आप जो है होली प्लांट भी लिख सकते हैं या होली प्लांट की जो बेरीज हैं दे आर बीइंग ईटन अप, तो यहाँ पर हम रेड बेरीज भी लिख सकते हैं. दो दो नाम है, सो इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन. बेरीज भी लिख सकते हैं आप, होली प्लांट भी लिख सकते हैं. दैट आर ईटन अप बाय द स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपको स्पीशीज ऑफ बर्ड्स बताया हुआ है. देन दे हैव आल्सो नेम दैट बर्ड व्हिच इज द सॉन्ग थ्रश. यहाँ पर भी दो हो गए. ठीक है, अब आप नीचे देखें, द सॉन्ग थ्रश आल्सो ईट कैटरपिलर and are there in the end they are eaten up by the hawk. अब यहाँ पर हमने करना क्या है, use the information above to complete the food web. Here we have to complete the food web by writing the name of the one species. ठीक है, one species in the each box है. Draw arrows between the boxes. Arrows भी बेटा हमने draw करने हैं to show the direction of the energy flow between these organisms. अच्छा, अब यहाँ पर जो है होली उन्होंने हमें बता दिया है फूड चेन. हमें पता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होती है बेटा, ये हमेशा जो है स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो होली जो है इसको हम पूरा लिख लेते हैं और दोनों ही नाम के साथ हम कर लेते हैं. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. एक नंबर जो है बेटा वो एरोज का होगा, एक जो है वो इनके नाम का होगा. अच्छा, पहला जो है होली प्लांट है. ठीक है, होली प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द रेड बेरीज, तो हम यहाँ पर होली प्लांट कर लेते हैं. होली इन्होंने लिखा हुआ है, दिस इज द प्रोड्यूसर, यहाँ पर हम होली प्लांट लिख देते हैं. ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फॉर योर कन्वीनियंट आई एम राइटिंग कि ये होली प्लांट है. अच्छा, इस होली प्लांट जो है इट इज ईटन अप बाय द कैटरपिलर. कैटरपिलर का नाम क्या है, होली लूपर. ठीक है, तो इट इज ईटन अप बाय द होली लूपर. ठीक है, एरो हम यहीं पे लगा देते हैं. इट इज ईटन अप बाय द होली लूपर. अच्छा, आगे आप देखें, जो होली प्लांट है बेटा इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग रेड बेरीज एंड दीज बेरीज आर ईटन अप बाय द स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स द सॉन्ग थ्रश. यही जो है बेटा प्लांट, इसके जो बेरीज हैं दे आर ऑल्सो ईटन अप बाय, कौन इसको खा रहा है, बर्ड. ठीक है, दे आर ऑल्सो ईटन अप बाय बर्ड्स. और अच्छा, बर्ड जो है दैट इज द सॉन्ग थ्रश. ये भी खा रहा है उसको, वो भी खा रहा है. ठीक है, अच्छा, थर्ड हम देखते हैं, सॉन्ग थ्रश ऑल्सो ईट्स कैटरपिलर. ये बेटा कैटरपिलर को भी खा रहा है, तो कैटरपिलर से भी एक एरो जाएगा टुवर्ड्स द सॉन्ग थ्रश, बिकॉज सॉन्ग थ्रश इज ऑल्सो ईटन अप बाय द it also eats the caterpillar. So from caterpillar to song thrush एक हमारे पास एरो जाएगा. In the end आप देखें, caterpillar जो है also it's caterpillar and this song thrush is eaten up in the end by the hawks है. This is eaten up by the hawk है, तो ये end पे हमारे पास hawk आ जाएगा. ठीक है, this was for 2 marks. दोबारा हम देख लेते हैं इसको. ठीक है, आप बेटा 2 टाइम्स उसको रीड करें, वहीं से हमें हिंट मिल जाएगा. प्रॉपर्ली इसको रीड आउट करें तो यहीं से हमें हिंट मिल गया. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. ठीक है, अच्छा, नीचे अब हम इसको सॉल्व करते हैं. एनी प्रॉब्लम बेटा इन दिस पार्ट? ठीक है, नीचे हम मूव करते हैं. स्टेट फॉर द फूड वेब अबाउट द नंबर ऑफ द, अच्छा इसमें स्पीशीज दैट आर प्रोड्यूसर्स. ठीक है, इसमें आपने बेटा नंबर बताना है. अच्छा, स्पीशीज जो है वो कितनी है हमारे पास प्रोड्यूसर्स की. Plants here only one producer, so this is 1. Species that are consumers. ठीक है, इसमें हमारे पास this is 1. ठीक है बेटा, this is 1. Very easy. एक ही है हमारे पास producer which is the holy plant species that are consumers. Consumers बेटा कौन से हैं, कितने हैं? This is consumer, holy looper, caterpillar is consumer, hawk is also consumer, and song thrush bird is also consumer. So this is 3. 3 are the consumer.
Okay, and how many are the trophic level? Trophic level आप बेटा देखें, this is 1, right? This is 2. This is song thrush is making the 3rd trophic level and hawk is making the 4th trophic level. So there are total 4 trophic levels. ठीक है, this is for 3 marks. बहुत easy question था. Any problem? राइट चले अब हम बेटा इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. द डायग्राम शोज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ फिश. द लंग्स ऑफ द ह्यूमन एंड द गिल्स ऑफ अ फिश both have a large surface area for the gas exchange. Both have the large surface area, right? अच्छा, state 2 differences between the structure of the heart of a fish and the structure of the heart of the human है. अच्छा, इसमें जो है बेटा एक तो आप देखें जो हार्ट है, जहाँ पे साइड पे मैं आपको बता देती हूँ, as we have not done this in detail. तो इसमें फिशेस का जो है बेटा दे हैव सिंगल सर्किट हार्ट एंड ह्यूमन हम कर लेते हैं. फिशेस हैव सिंगल सर्किट हार्ट. सिंगल सर्किट हार्ट क्या होता है? सिंगल सर्किट हार्ट इज बेटा द वन इन विच द ब्लड फ्लोज only in one direction or it flows once from the heart. That's the single circuit. और human beings का जो है बेटा this is the double circuit heart. Double circuit is one in which the blood flows twice from the heart. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सिंगल और डबल का भी बता देती हूँ. सिंगल में बेटा ऐसे होता है, फिशेस जो हैं they have one atria, right, and they have one ventricle. One atria and one ventricle, while the human beings they have two atria and they have two ventricles. ठीक है. अच्छा, पाथवे नीचे बेटा आप देखें, जो फिशेस में पाथवे होता है फॉर सिंगल सर्किट दैट इज फ्रॉम बॉडी, ब्लड इज पंप्ड टू द हार्ट. Deoxygenated blood is pumped to the heart. From heart, it goes to the gills where it is oxygenated. Then it is sent from gills to the body. So here you can see that the blood has passed from the heart just once. Body से पहले heart में आया है, heart ने pump किया है, and with that pressure it has gone to the gills for oxygenation. Oxygenation के बाद it has not returned back to the heart. ठीक है बेटा, जो भी प्रेशर था उसी प्रेशर से इट हैज गॉन टू द बॉडी. ठीक है, बॉडी में जो है इट हैज गिवन ऑक्सीजन टू द सेल्स, इट हैज टेकन कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट हैज रिटर्न्ड बैक टू द हार्ट. सो फ्रॉम हार्ट इट इज जस्ट पासिंग वंस. तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सर्किट. और ह्यूमन बीइंग्स में हमें पता है, ह्यूमन बीइंग्स में बेटा क्या होता है. अच्छा, बॉडी से जो है, बॉडी से कहाँ जाता है? बॉडी से इट मूव्स टू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू हार्ट. ठीक है, हार्ट से जाता है लंग्स के पास, लंग्स से दोबारा जो है बेटा इट इज रिटर्न टू हार्ट. ठीक है, हार्ट में आता है, देन इट इज रिटर्न टू द बॉडी. तो इसमें आप देखें बेटा फ्रॉम हार्ट इट हैज पास्ड ट्वाइस, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल सर्किट. ये सिंगल सर्किट और डबल सर्किट था. हमने बेसिकली क्या करना है, डिफरेंस लिखना है. तो डिफरेंस में आप बेटा ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, और एट्रिया और वेंट्रिकल का भी आप बता सकते हैं. ठीक हो गया. और यस, दिस इज बेटा सफिशिएंट बिकॉज इसके अलावा जो डिटेल है वी हैव नॉट स्टडीड और सिलेबस का पार्ट भी नहीं है. सो दिस विल गिव यू द 2 marks. नेक्स्ट हम इसका पार्ट करते हैं. ड्रॉ अ रिंग अराउंड द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ऑर्टा ऑफ अ फिश विल बी. चले आप बताएं बेटा, ऑर्टा ऑफ द फिश में जो प्रेशर है इट विल बी हायर और द लोअर. ऑर्टा में आप देखें, ठीक है, एज आप देखें इट इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम द सिंगल वेंट्रिकल. तो इसमें आप प्रेशर देखें, इट विल बी हायर और लोअर. क्या होगा? इट विल बी लोअर. इट विल बी लोअर देन प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द ऑर्टा ऑफ द ह्यूमन. ठीक है. अच्छा, एक तो इसका बेटा ये रीजन है कि दिस ब्लड हैज टू बी पंप्ड टू, कहां पर जाना है? दिस ब्लड हैज टू बी पंप्ड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एंड देयर बॉडी इज द मल्टीसेलुलर. So they need more pressure to pump blood to all the body parts. और fishes में that much pressure is not required. और दूसरा जो इनमें difference होता है that is in the structure of their ventricle which is pumping blood to the body parts.
इनमें भी डिफरेंस है, जस्ट फॉर द 1 मार्क, और ये थोड़ी सी अंडरस्टूड सी चीज है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट बेटा हम देखते हैं। द ग्राफ शोज, द फोटोग्राफ शोज एन एंटार्कटिक आइस फिश। ओके, द ब्लड ऑफ द एंटार्कटिक आइस फिश इज कलरलेस। कलरलेस का मतलब है कि इसके अंदर क्या नहीं है, दे लैक हीमोग्लोबिन। स्टेट विच कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द एंटार्कटिक आई फिश, दैट इज द हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, आप हीमोग्लोबिन के अलावा वैसे रेड ब्लड सेल्स भी आप लिख सकते हैं, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स, द नेम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, आप वो भी लिख सकते हैं। Antarctic ice fish lives in the Antarctic Ocean where the water temperature is very cold. ठीक है, aerobic respiration is an enzyme controlled reaction. More oxygen is able to dissolve in water at lower temperature. ठीक है, यहां से बेटा आइडिया हो गया, दे आर लिविंग इन द कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, और उसमें आप देखें एरोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट इज द एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है बेटा दैट इज मोर एट लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब है देयर इज पॉसिबिलिटी कि इनके जो बेटा एंजाइम्स हैं दे आर वर्किंग एट दिस टेम्परेचर, और इफ द एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग एट दिस लोअर टेम्परेचर तो इनके एंजाइम्स क्या होंगे, दे विल बी इनएक्टिव, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कम होगी। अच्छा, एंटार्कटिक आइस फिश हैज अ लार्जर हार्ट, wider blood vessels and a great volume of the blood than fish of the same size that lives in the warmer water. Larger heart है, ठीक है, blood vessels are also wider for the more flow of the blood है, and अच्छा चले अब हम देखते हैं क्वेश्चन में बेटा कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। दिस इज फॉर 5 मार्क्स। जस्ट हाउ द एंटार्कटिक आइस फिश with colorless blood are able to survive in the low temperature, right? अच्छा, अब लो टेम्परेचर में आप देखें, अभी हमने ऊपर देखा है कि इनके बेटा जो एंजाइम्स है दे विल बी इनएक्टिव, लेस एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एंजाइम्स, एरोबिक एंजाइम्स हम लिखते हैं, ठीक है, या रेस्पायरिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, एंजाइम्स विल बी इनएक्टिव, दे आर इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव होने की वजह से इसको हम प्रॉपर कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एंजाइम्स आर इनएक्टिव। अच्छा, इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, देयर विल बी लेस एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा, लेस एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से दे विल नीड लेस ऑक्सीजन, ये उनको नहीं चाहिए होगी। ठीक है, लेस ऑक्सीजन नीडेड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें बेटा क्या होगा, जहां पर हमने देखा है कि रेस्पिरेशन के लिए जो है लेस ऑक्सीजन इज बीइंग रिक्वायर्ड, और दूसरा यहाँ पर देखें दे हैव द लार्जर हार्ट, दे हैव वाइडर ब्लड वेसल्स एंड अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड देन दैट ऑफ फिश साइज। ठीक है, सेम लिविंग इन द विंटर है, तो इसमें क्या होगा, जो मोर ऑक्सीजन है यहाँ पर। अच्छा, एक और भी बेटा हमें यहाँ से हिंट मिला है, एक तो ये हमने इसको रिलेट किया है इस वाले पॉइंट से जो अभी हमने आंसर किया है। सेकेंड आप देखें, दे आर गिविंग अस एन अदर हिंट दैट द मोर ऑक्सीजन इज एबल टू डिसॉल्व इन द वाटर एट द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, अगर मोर ऑक्सीजन इज बीइंग डिसॉल्व तो इसका मतलब है मोर ऑक्सीजन विल बी डिफ्यूज्ड। ठीक है, मोर ऑक्सीजन जो है इट विल बी diffused और absorbed by the fish है। ठीक है, absorbed by fish because of the concentration difference, more will be absorbed by the fish। ठीक है, दूसरा आप देखें कि more जो है it will reach to the, more oxygen is being absorbed, more will reach to the blood, more will reach to the blood प्लाज्मा। ठीक है, अच्छा, यहीं से आप देखें बेटा दे लैक रेड ब्लड सेल्स, दिस मोर ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो मोर जो है इट विल डिफ्यूज इनटू, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड और ट्रांसपोर्टेड
more will be supplied to, कहाँ जाएगी, to organs और tissues और cells है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए बेटा ऑक्सीजन को जो है हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को सेव करना है। उसको हमने किस तरह सेव किया है, पहले तो आप देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा वहां से एक तो ऑक्सीजन कम हमारे पास हो गया, वहां से हमने सेव कर लिया है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इनटू द एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाई? बिकॉज द एंजाइम्स आर इनएक्टिव एट द लोअर टेम्परेचर, एक ये रीजन थी। अच्छा, जो ऑक्सीजन है वाटर में मोर डिसॉल्व होती है, सो मोर विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय द फिश। ठीक है, और वही मोर ऑक्सीजन जो है बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द सेल एंड द प्लेस वेयर इट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड, वो ट्रांसपोर्ट होगी बिकॉज दे लैक द रेड ब्लड सेल, सो इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन डिफरेंस। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? ठीक है, अच्छा अब हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये वाला देखिए, द टेबल शोज द मास ऑफ ईच कंपोनेंट in 250 cubic centimeter of the cow's milk, right? कार्बोहाइड्रेट का जो बेटा कंटेंट है that is 11 grams, फैट का जो कंटेंट है this is 8 grams, और जो बेटा प्रोटीन का कंटेंट है this is again the 8 grams in 250 cubic centimeter of the cow's milk. At 250 cubic centimeter, okay, cubic centimeter drink of the cow's milk provides 14% of the total mass of the protein required each day in diet of an average adult, right? अच्छा, इसमें हमने अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ द प्रोटीन required in the diet of an average adult human each day. You must state your answer one decimal place and include correct units है। अच्छा, अब बेटा जो हमने टोटल कैलकुलेट करना होता है वो किस तरह करना होता है, साइड पे मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास बेटा दो मेथड है। जब आपने याद रखना है कि व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज, तो हमने जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड करना होता है टोटल के साथ, और हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। सो दिस गिव्स अस द परसेंटेज जो भी है हमारे पास, राइट? अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अगर दे हैव गिवन अस द परसेंटेज और हमने परसेंटेज से वैल्यू की तरफ मूव करना है, तो आप यहाँ पर देखें, जब हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर आप देखें, व्हाइल वी वर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, तो वी वर डिवाइडिंग बाय द टोटल एंड वी वर मल्टीप्लाइंग बाय द 100। तो जब हमने परसेंटेज से ये वाली चीज हमने कैलकुलेट करनी होगी, राइट, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, अब हमने, आप देखें टोटल को आप बेटा इस साइड पर ले जाए, जो भी आपकी परसेंटेज है इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय टोटल वैल्यू, राइट, और डिवाइड कर दें इसको 100 से, तो दिस विल गिव यू द ऑब्टेन्ड वैल्यू। ठीक है, अच्छा दिस वाज फॉर द मैथ्स। यहाँ पर हम देखते हैं, अच्छा इन्होंने हमें बेटा बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास 8 है, 8 grams in the proteins, they are actually providing the 14% of the total mass. अब हमने क्या करना है, हमने जो है बेटा यहाँ पर कैलकुलेट करना है टोटल मास ऑफ द प्रोटीन रिक्वायर्ड इन, ये भी 250 cubic centimeter है, and this value is also given in the 250 cubic centimeter. So how we are going to calculate this? We are going to calculate this in a way, let's suppose कि हमारे पास बेटा जो वैल्यू है, this is the total जो वैल्यू है, that is for example x. Let the total value be, हम यहाँ पे कर लेते हैं, जो हमारे पास बेटा टोटल वैल्यू है that is, let the total value, ठीक है, इसमें बेटा हम करते हैं जो हमारी टोटल वैल्यू है, okay, so beta let the total value be,
total protein content, total protein is for example it's x, right? अच्छा, अब जो है 14% of x is making up 8 grams, right? So इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? x multiply by इसका जो 14% है, it is calculated in this way. It is giving us how much? This is giving us 8. अच्छा, अब जो है हमने बेटा x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर देते हैं. जो x है this is equal to, this is making up 8 grams. अच्छा, इसको हम कर लेंगे 8 multiply by 100 divided by 14. ठीक है, इस वैल्यू को बेटा 100 जो है इस साइड पर इट विल बी मल्टीप्लाइड, राइट? और जो बेटा जहां पर 14 है, दिस 14, दिस विल बी डिवाइडेड हियर, तो ये हमारे पास 14 आ जाएगा, राइट? सो इसको हम देखते हैं कि हमने इसको ठीक है, इसको बेटा हमने कैसे कैलकुलेट करना है. दिस कम्स आउट टू बी 800 डिवाइडेड बाय 14. अच्छा, इसमें बेटा 800 divided by 14, it gives us 57.14, right? So x is basically 800 divided by 14, so it comes out to be 57.14 grams. They have asked to write up to 1 decimal, so 57.1 is the answer. ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है दिस इज 57.1 ग्राम्स. अच्छा, इसमें बेटा वर्किंग भी जो है हम शो करेंगे. 1 मार्क विल बी फॉर आंसर, 1 विल बी फॉर द यूनिट्स ग्राम्स, और 1 जो है दैट विल बी फॉर द वर्किंग. स्टेट द 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द प्रोटीन इन द डाइट. अच्छा, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. इसमें बेटा जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन नेचर. They are making the antibodies, hormones in our body. They are protein in nature. इसके अलावा बेटा hair, skin, nail, right, cell membrane also has protein. और protoplasm जो है that is also protein in nature. ठीक है, तो 2 are required. इसमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं. So these are the functions or importance of the protein in the diet. Right, इसका बेटा ये पार्ट भी हम कर लेते हैं. The table below lists 4 components of the balanced diet for an average adult. For each component listed, the percentage of the daily requirement provided by the 250 cubic centimeter of the milk is shown. Vitamin C, this is a 0, right? Vitamin D, this is 30 grams. And calcium, that is percentage, right? Calcium, that is 30% in 250 cubic centimeter of the milk, and iron is 0% in 250 cubic centimeter of the milk. Discuss how 250 cubic centimeter drink of the cow's milk contributes to the health of an adult human for each of the components listed in the table, and this is for 4 marks. अच्छा, इसमें आप देखिए बेटा, they have given us or shown us 4 components. तो हमने क्या करना है, components के function लिखने हैं, and according to the percentage हमने relate कर देना है. If this is less in the diet, तो उससे क्या होगा, मुझे functions हैं which are being performed by these nutrients or components, they will not be performed. तो जल्दी से हम इसको देखते हैं. जो बेटा विटामिन सी है दैट इज 0%, और हमें पता है विटामिन सी जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी. विटामिन सी, ठीक है, नो विटामिन सी, नो, या 0% विटामिन सी, इट कैन लीड टू स्कर्वी. स्कर्वी के अलावा जो है बेटा ब्लीडिंग gums, and it's also required for the healing purpose, healings of the wound, so there will be no wound healing.
ठीक है, ये एक हो गया। अच्छा, इस कंपोनेंट के साथ बेटा वन फंक्शन इज सफिशिएंट, राइट। सेकंड जो है विटामिन डी, दैट इज 30%। ठीक है, और विटामिन डी का हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। विटामिन डी जो है हमें पता है दिस इज रिक्वायर्ड बेटा, vitamin D, this is required for absorbing, it absorbs calcium from small intestine to blood, right? This is the first function. And second function is it is required, second बेटा इसका function है this is required, किसके लिए होता है? This is for strengthening of the bones and teeth. ठीक है, थर्ड जो है बेटा कैल्शियम है, सेम विल बी द फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, कैल्शियम के जो हम लिखते हैं 30%, इट इज रिक्वायर्ड अगेन फॉर strengthening of bones, right? Bones and teeth. इसके लिए चाहिए होता है। सेकेंड जो है बेटा कैल्शियम, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग, राइट। अच्छा, थर्ड जो है बेटा कैल्शियम, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से भी हम इसको रिलेट कर देते हैं, इट प्रिवेंट्स और इट्स डेफिशिएंसी, राइट, प्रिवेंट्स फ्रॉम रिकेट्स। आप कर लें, it prevents from rickets, right? और ये जो है बेटा this is also the function of vitamin D as well, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं prevents rickets और its deficiency will cause rickets. ओके, जो फोर्थ बेटा कंपोनेंट है दैट इज द आयरन, और आयरन हमें पता है किसके लिए चाहिए होता है, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा फोर्थ जो है आयरन, आयरन इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग hemoglobin, right, for red blood cells, right, and its deficiency causes anemia, right, because also there will be shortage or lack of energy because they transport oxygen, and if the oxygen will not be transported, aerobic respiration will not take place, and if aerobic respiration will not take place, there will be shortage of the energy, right? So yes beta, we have completed 3 questions. We will be solving this fourth tomorrow inshallah. Any problem up till now? कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई इश्यू? होप सो एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। ओके बेटा, चले, आई एम ऑल्सो गोइंग टू साइन आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।